in a field we sown different crops in a different year. We planned that we have to sow this plant in this season, and another season we have to plant short crops, means which produce nutrition, like leguminous plants, where in leguminous plants there is a rhizobium bacteria which convert nitrogen from the atmosphere in nitrates into the soil. Then there is a bottle farming and vertical farming. You can see that in this generation there is so much waste of plastics. We can use plastic bottles for the farming. You can also use aeroponics. With the help of air, the plants can grow. And there is a vertical farming. We can grow plants in a stacked layer. You also use soil for this. With the help of soil, it can grow. Next, there is the aeroponics, which show with the help of air, no need of soil. It can take the nutrition from the water. There is a hydroponics. We connect the pipe from the tank which produce water, and plants get their nutrition from the water which is required for the plants. Then here is the integrated farming. As we can see that in this generation there is no space. We can farm our animals in a less space area. Two types of farming, like fish farming and chicken farming. We can see that there is a waste which is produced by the chickens can go under the pond, which is feed for the fishes. And there is a indoor farming. We can grow plants inside the buildings with the help of the machines which is present in this storerooms, which helps to controls the atmosphere. Atmosphere nahi, temperature, which help to maintain the temperature of the room. Thank you. बोलो रेटिंग देने के लिए बोलो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। लाओ लाओ लाओ, माइक लाओ, माइक लाओ। अब यार बहुत अच्छा क्यों है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक मिनट, साइड। एक मिनट, रुक जाओ। खातून जन्नत, रुक जाओ, माइक लो। गले में पहन लो, पहले इसको पहन लो, इसको लगाओ पहले। माइक लगाइए, माइक। हाँ, इसको भी थोड़ा लाउड कीजिए। हाँ, लाउड कर दे रहे हैं। अपने से लगाओ। इसकी ज़रूरत सिवान में है। हाँ, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। और पास में लीजिए माइक, उसको पास में करो। हाँ, और पास में, हाँ, उसको नीचे कर दो। ठीक। Sir, I am Khatun Jannat from Standard 9, and we have prepared this working model of hydroelectric power plant to show that how the electricity is generated through the water. So team, introduce yourselves. From class 9. Give her mic. बोलिए। Good morning, sir. I am Sir, a hydroelectric power plant consists of a high dam. Hello. It is built. बोलो। हाँ, बोलो। It is built across a large river, as you can see over there, to create a reservoir and a station where the conversion of power to electricity takes place. The first step in the generation of energy in a hydroelectric power plant is the collection of rainwater into this dam, and after that the runoff water flows to dam in downstreams. The water that flows through dam into hydropower plant and turns this large wheel over there called turbine. The turbine convert the energy of falling water into mechanical energy to drive the generator. After this all process has taken, the electricity is transferred to communities through the transmission line, and the water is released back into the river, as you can see after. And this process is entirely not harmful because no pollutants are added to water while it drives through the flows through the hydropower plant. And in India, there are 197 hydropower plants which can produce more than 25 megawatt energy. India is the 5th largest producer of electricity through the hydroelectric power plant. Thank you. Is it working model? Yes, sir, it's working. Show it.
अभी नहीं। करंट सप्लाई करो, स्विच ऑन करो, स्विच ऑन करो। लाइट नहीं है। क्या हो गया? कौन सा फल है? हाँ हाँ हाँ, हिला 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 हिला, ऑन ऑन करो। गैस गुड गुड, पान 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 डाल दो। हो गया हो गया हो गया। और इधर रहता ना उसको गिर करो। ठीक है, थैंक यू सो मच। गुड गुड। माइक माइक दे दो। ला माइक ला। माइक हाँ माइक हाँ दो। एक मिनट, साइड 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 प्लीज। माइक लगा, कौन बोलेगा? एक्सप्लेन कौन करेगा? लगा माइक लगाओ, ये भी लगाओ। जल्दी लगाओ। हेलो लगाओ पहले उसको माइक लगाओ। लगाओ ना पहले। इसको लगा लीजिए, नीचे लगा लीजिए। हाँ आई कार्ड में लगा लीजिए। वो माइक का उसको हटा दो, अगर उसमें बोलिए, माइक आवाज़ आ रही है? Assalamualaikum ठीक, ठीक। warahmatullahi wabarakatuh. Firstly, I'm introducing myself. I myself Tekra Rizwan. Me and my team made this project. This is our project solar system. It has 3 parts. Now I would like to call Ayan Aftab from Concrete जो होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट होता है। ये हमारा इंडिपेंडेंट होता है। इससे हम लोग डायरेक्ट एनर्जी कंज्यूम करते हैं और बैटरी में हम लोग रिजर्व करके रख लेते हैं, और जो बचा रहता है, जो हम लोग का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बनता है, उसको हम लोग रात में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा ऑन ग्रिड है, जिसमें हम लोग डायरेक्ट ग्रिड से कनेक्ट करते हैं। इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, वो जो एक्स्ट्रा जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी, वो हमारा ग्रिड में कनेक्ट होता है। और फिर ग्रिड से जो हम लोग रात में जो चीज़ हम लोग को रात में इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरत पड़ती है उसकी, वो हम लोग ग्रिड से ले लेते हैं। और ये हाइब्रिड मतलब इसमें हम लोग का दोनों, हम लोग का ग्रिड भी है और हम लोग का बैटरी भी है। तो ये ग्रिड से और बैटरी से दोनों से कनेक्ट होता है। फातिमा, कैन यू एक्सप्लेन प्लीज़? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am myself Fatima Shah from Step 9. So I'm gonna explain solar system. Solar system is the radiant energy and light from the sun that is harnessed using various technologies such as solar panels and solar thermal powers. Ayan, can you explain the next topic? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Mohammad Ayan Nur Khan. I now going to explain about benefit of solar energy. Reduce electricity bill, low maintenance cost, renewable and flexible source of energy, and environmentally friendly, reducing footprint. Who is the third? Please explain the topic, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself I am here to explain on this system. We can use on this system. We can use on this system to harness the solar energy during daytime, so that we can use it. We can use at night. We can use at night, converting it into electrical energy, and we can also minimize the electrical bill with incurred by electricity. Lucky, please, can you explain the topic, please? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Mohammad Lafi Ali. Today I am presenting here advantage and disadvantage. Advantage: cost effective, no need for batteries, net metering benefit. Disadvantage: no power during grid outage. Thank you. Bushra, can you explain the topic, please? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Bushra Nizam. I am here to tell about off-grid solar system. Off-grid solar system not connected to the utility grid, in which so many components used like solar panel, batteries, charge controller and inverter. 6, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I myself Yusuf Said from class 9. Today I am present here to deliver how it works. Solar panels generate DC electricity and stored in water. Stored AC DC electricity to AC to for use.
Advantage or disadvantage. Advantage is independence from grid and reliable in remote areas. Disadvantage higher in initial cost, requires battery and maintenance. सर कहाँ है? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I myself Namuna Tayyaba am solar system. Combine on-grid and off-grid system, components, solar panels, hybrid inverter, battery storage. यानी कि सर अगर हम बैटरी और ग्रिड दोनों साथ में लगाएंगे, लाइट कटने के बाद भी बैटरी में एनर्जी स्टोर हो सकता है, लाइट कटने के बाद भी हमारे घर पे आ जाएगी। और जो ग्रिड है उससे सरकार के पास भी एनर्जी जा सकती है, लाइट मतलब हमारे यूज़ करने के बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाएगी वो सरकार के पास जाएगी। बैटरी में सर जो हम यूज़ करेंगे लाइट कटने के बाद, और बैटरी से जो बच जाएगा ग्रिड में जाएगा वो डायरेक्ट सोलर। इट्स हीट एनर्जी है सर, वो डायरेक्ट सन से जो एनर्जी Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I myself Mariam Khatun, and now I comprise the systems, hybrid system, off-grid system, and on-grid system and hybrid system. First of all, on-grid system, it is cost effective. सर हम लोग on-grid system अपने बिल को ज़ीरो बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि वो जो हमारा दिन में जो सोलर जो दिन में एनर्जी जो जनरेट होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं, और बाकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाता है वो ग्रिड से कनेक्टेड होता है, कनेक्शन ग्रिड से होता है, इसलिए वो सरकार के पास चला जाता है। और फिर रात में हम लोग सरकार का जो एनर्जी होता है वो यूज़ कर लेते हैं, इसकी वजह से हमारा जो बिल होता है वो ज़ीरो हो जाता है। और सर इसमें एक और हम लोग का बेनिफिट होता है कि इसमें बैटरीज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम लोग को बैटरीज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये इसका जो कॉस्ट होता है वो लो होता है। और सर ऑन-ग्रिड ऑफ-ग्रिड सिस्टम में इंडिपेंडेंट होता है और इसमें बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, और ये इसका कॉस्ट जो होता है वो हाई होता है, और वो ज़्यादातर रिमोट एरियाज़ में होता है, जैसे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाना बहुत मुश्किल है, तो वहाँ हम लोग इंडिपेंडेंट तरीके से वो ऑन-ग्रिड ऑफ-ग्रिड सिस्टम को लगा सकते हैं। और हाइब्रिड सिस्टम में दोनों ही होता है, और बैटरीज भी होता है और ग्रिड से भी कनेक्शन होता है, और इसका कॉस्ट भी हाई होता है बिकॉज इसमें हम लोगों को बैटरी लेना पड़ता है। सर दिन में हम लोग सोलर से एनर्जी जनरेट किया हुआ यूज़ करते हैं, और फिर बाद में हम लोगों को बैटरी का भी बैकअप होता है, और क्योंकि वो ग्रिड से कनेक्शन होता है इसलिए हम लोग सरकार का भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाई माइक लाई, दैट्स ऑल। और आए दो माइक दे दो, माइक वो दे दो। लगा देना इसको, करेंगे अभी बाइक जरूर गई। अच्छा घूम जाने फिर दिखाते हैं। रखिए फिर रखिए, लीजिए वर्किंग दिखाना है। यस सर, वर्किंग दिखाना है। दीजिए सर, उसको दीजिए, लगा दो, लगा लो। ये लग रहा है बच्चों इस तरह का, ये दीन दुनिया दोनों इसमें कामयाब बच्चे हो रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद करता है आगे भी इस तरह के बच्चे कामयाब होंगे। और ये जो दुआएं हैं बच्चों के साथ क्या करेंगे समान के बच्चों को, और जिला को ये फील करेंगे कि हर बच्चे को स्कूल में आना चाहिए और पढ़ना चाहिए, अच्छे स्कूल में सेलेक्ट करना चाहिए, और देखना ये चाहिए कि बच्चा कहाँ है, किस स्कूल में कौन सी क्वालिटी है, और उस क्वालिटी को जज करके वहाँ जाना चाहिए, और देखना चाहिए कि हमारा दीन और दुनिया कहाँ कामयाब हो रहा है, वैसे ही स्कूल को सिलेक्ट करके हम बिल्कुल लगना चाहिए। और लगने से बच्चों का साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होता है, और ये बच्चों का स्मार्ट भी बनता है हर चीज़ में, जैसे हर फील्ड में बच्चे अच्छे करते हैं, एजुकेशन का एक पार्ट। सर वर्किंग मॉडल से देखना। हाँ चलिए बोलिए। नहीं वर्किंग मॉडल दिखाना। अच्छा, वर्किंग मॉडल
सर ये वर्क करता है जो हम लोग सोलर स्टार्ट से एनर्जी करते हैं। देखिए सर यहाँ से हम लोग सोलर से पानी डायरेक्ट जा रहा है हम लोग के प्लांट में, और ये सोलर से हम लोग प्लांट में पूरा पानी डाल रहे हैं, और इसी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, ये बल्ब चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। और इसका कंक्लूजन है सर, समरी ऑफ की पॉइंट्स, overview of a solar energy and its benefit comparison of a different solar system, features of solar system, growing adoption technology, advancement and potential substance energy solution. Thank you for having patience, sir. Can you please rate our project, please? Okay, thank you. जला ही नहीं काय का वर्किंग मॉडल हट साइड लीजिए। कौन है और नया स्मार्ट सिटी जो बन रहा, मोदी जी बनवा रहे हैं, हेलो वहाँ तक है। हेलो लीजिए, लगा उसको पहन लीजिए, इसके सर उसको गले में उसे पहनो, उसको सर थोड़ा सा बोलना है, वो बस ऐसे बोल। अच्छा कौन है? मैं तुम बताओ, असल कौन? लगा लीजिए बेटा, सर पे लगा लीजिए, हाथ पे ले लीजिए, उसे नीचे रखिए पहले, अब पकड़ लो उसको, सर पे लगा लीजिए। हाँ ये लीजिए, वो लाइए, आप लगा लो इसको। कैसे लगा सर? थोड़ा लगा दीजिएगा। पकड़ो one of present city and another one of future city. There are a lot of issues and problems which are faced by people living in the city, and to get rid from those problems, we are given solution in future city, and they are described by Mr. Asif and Mrs. Atika. सर इसी से बोल रहा हूँ। इसी से बोलिए बेटा। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The first issue is the traffic jams. So as you can see here, due to some confusion, when the driver go through the wrong side, this leads to the collision. So this leads the loss of lives, property, etc. So Akhtar will tell you the solution for this. Good morning, sir. My name is Akhtar Parvez. I am from class 10. I am going to tell you the solution of the problem he told you. The solution that we have made is V1-way spikes. In this, it is made with the help of sensors and spikes. In this, we insert spikes in between of roads. If a vehicle by chance goes from the wrong side, then the spikes get punctures the tire and make the vehicle stop, which prevents the loss of life. Now the second problem is air pollution. Due to the use of petrol and diesel in motorcycles, cars, buses and other vehicles, this leads to the emission of harmful gases which will contaminate the air and causes many harmful diseases. Now Arfa will tell you the solution. For that problem, we have made e-expressway. In this, vehicles are electric vehicles. They move with the help of electricity. We use solar panels to catch energy, and they give the electricity to the vehicle, and the vehicle moves with the help of electricity. The main problem is manual scavenging, which is against human rights. हॉस्पिटल्स में या फिर स्कूल्स में, होटल्स में हम लोग ह्यूमन्स का इस्तेमाल करते हैं क्लीनिंग के लिए, जो कि उनके डिग्निटी को हर्ट करता है, और फिर से नाला वगैरह साफ करने के लिए भी हम लोग ह्यूमन्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंफीरियर और सुपीरियर का बीच में बॉन्ड बना देता है। और फिर से अगर हॉस्पिटल में अगर वो काम कर रहे हैं, तो ये उनके लिए कम्युनिकेबल डिजीजेस का कॉज हो सकता है, जिससे बीमारियां फैलेंगी। तो आजिफा अब बताइए इसका सोल्यूशन। उसके लिए हमने बनाया है रोबोटिक स्वीपर, जो कि हम रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स और हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, और इससे हम लोग उस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं कि ना तो इससे इंसानों को डिजीज होगी और ना ही हमको इंफीरियर और सुपीरियर वाली फीलिंग आएगी। Lack of faster connectivity due to the use of slower vehicles. कई दफ़ा लोगों को अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए बहुत सारा वक्त लग जाता है, जिनसे उनका काम भी नहीं हो पाता, और फिर से वो अपनी फैमिली से दूर जाके काम करते हैं, क्योंकि स्लोअर व्हीकल है। तो इसको टैकल करने के लिए मेन सिटी में कुछ बनाया गया है। आगे बात। For that problem, we have made Hyperloop. It is a train which runs with a speed of 1100 km/h. IIT Madras recently checked it, and it is a very great thing for the people of rural area. They can come from the rural area and work in the urban area, and they don't have to leave their
family for that purpose. इंटरनेट का इशू है रूरल एरियाज में, तो इसके लिए इंफीरियर और सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है। हम बताते हैं सर, रूरल एरियाज में ये प्रॉब्लम होती है कि जो फाइबर की तरह से जियो फाइबर है, तो उसकी वजह से रूरल एरियाज में इंटरनेट नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से रूरल वाले लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर जैसे कि कोई रूरल एरिया में खेती कर रहा है, तो अगर उसको वेदर के बारे में मालूम ही नहीं होगी, कब बारिश होने वाली है और सॉइल कंडीशन कैसी है, तो वो खेती कैसे कर पाएगा। उसका सोल्यूशन निकालने के लिए हमने बनाया है सैटेलाइट इंटरनेट, जिसकी वजह से जो है हम लोग बिना फाइबर के इंटरनेट वहाँ पे पहुँचा सकते हैं, और वो उनके लिए इजीली एक्सेसिबल है, इकोनॉमिकली फिजिकल है, और ना ही उनसे डाटा चोरी होने का खतरा होता है। Now the problem is old infrastructure of bridges. जब ज़्यादा तेज हवाएं आती हैं तो ये जो ब्रिजेस हैं ये मटेरियल से बने हुए होते हैं, कंक्रीट से या फिर मेटल से इनमें लगे हुए होते हैं, तो आफ्टर सम टाइम उनमें क्रैक्स आ जाते हैं, जिनकी वजह से ये टूट जाते हैं बाद में जाकर, और ये फ्लेक्सिबल भी नहीं होते हैं, रिजिड होते हैं, तो ये टूट जाते हैं। इसके लिए हमने बनाया है केबल स्टेक ब्रिज। इसके अंदर ये केबल्स का यूज किया गया, जिसके थ्रू जो एयर है वो पास कर सकती है। इससे एयर का इतना रेजिस्टेंस नहीं पड़ता और ना ही उसमें प्रेशर पड़ता है, इसलिए फ्लेक्सिबल भी होता है और इसमें रिजिडिटी कम हो जाती है, जिससे जल्दी टूटता नहीं और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। हमने एक फ्लड अलार्म सिस्टम भी यूज़ किया, जिससे जो मछुआरे होते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत इसकी वजह से कम होती है। जब वो वहाँ पे मछलियाँ जब निकाल रहे होते हैं नियर बीच एंड ऑल, तो फ्लड आने की वजह से उनकी ज़िंदगी को बहुत नुकसान होता है। तो हमने एक फ्लड अलार्म सिस्टम बनाया है। ये ऐसे काम करता है कि जब पानी एक ट्यूबवेल लेवल के ऊपर चला जाता है तो बचा बचता है, और उससे वो अलर्ट हो जाते हैं और वहाँ से इवैक्यूएट कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जान और माल का खतरा नहीं होता है। Yes, sir. We have also made an earthquake alarm system. जिसकी वजह से अगर टेक्टोनिक प्लेट्स थोड़ी सी भी वाइब्रेट करती है, तो अगर प्राइमरी प्लेट्स उठती है तो उससे जो बजर है वो बजना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को अलर्ट हो जाते हैं और लोग वहाँ से इवैक्यूएट कर जाते हैं और जान और माल का कम खतरा होता है। हमने वेंटिकल ग्रिड भी बनाया है, जिससे हमारी जो डिपेंडेंसी होती है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे, जैसे कि कोल, वो खत्म हो जाती है। इससे हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिड, और इससे हम लोग की डिपेंडेंसी वो खत्म हो जाती है और हम आसानी से जो इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे स्पेशल जो हमारा है वो है एंटी स्लीप ग्लासेस। जब रात में ड्राइवर्स ड्राइविंग करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि इसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि उन्हें नींद आ रही होती है। माइक दे दो। आग जब बंद होगा तो गाड़ी रुक जाएगी। हाँ, गाड़ी चल रही है, आग बंद कीजिए। हाँ, बंद हो गया, अलार्म बज गया कि आग खोल दीजिए। आग खोल, गाड़ी चलने लगी, आग बंद कीजिए, गाड़ी रुक जाएगी। बताइए आप। बाबू यहाँ पर सेंसर है जो और नीचे को मशीन देता है और रिले इंजन जो रहता है तो इंजन स्टॉप हो जाता है, इससे ड्राइवर की जान बच सकती है। गाड़ी ऑफ हो जाती है और नींद आएगी उनको, आँख जब बंद करते हैं। हाँ रियल हाँ, इसमें अगर हम लोग इसको ज़्यादा बड़ा कैपेसिटर यूज़ करें तो हो जाएगा। पुरानी सिटीज में क्या होता था, जब घर बनते थे उसके अंदर एनवायरनमेंट को कोई फायदा नहीं होता था। जब हमने मॉडर्न के फ्यूचर वाले एरिया में स्टोरेज वाटर हार्वेस्टिंग किया है, घर के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे एक कंटेनर के अंदर रखते हैं, नीचे का पानी होगी तो कंटेनर जब भी होता है लोग उसके अंदर इकट्ठा हो जाते हैं और हमने पाइपिंग के थ्रू उसको फिल्टर में लेके गए जिससे पानी आपके साफ निकलेगा। फिर हम इसको एक मेन टैंक के अंदर रख देते हैं और मेन टैंक से हम अपने जो भी हाउस होल्ड से जो भी काम होता है उसके अंदर से निकाल सकते हैं, उसको वेल में निकाल सकते हैं, वेल से जो गाँव की मजदूरी यूज करना चाहिए कर सकते हैं। इसको हम फार्मिंग के लिए भी इरीगेशन के तौर पर यूज कर सकते हैं, इसका बहुत फायदा है, इससे वाटर का प्लान होता है। कौन सा फ्लो है?
कौन सा फ्लो है टाइम फॉलो करते हैं, कौन सा टाइप का फ्लो है, पानी फॉलो कर रहा है, किस तरह फॉलो कर रहा है, किस वजह से फॉलो कर रहा है, थ्योरी किस थ्योरी से फॉलो कर रहा है। वो होता है फ्लो का अंडर प्रेशर, इससे और ग्रेविटी जमीन के एक्शन की वजह से जमीन पानी को खींचता है, ग्रेविटी अंडर प्रेशर हो रहा है तो क्या पानी ऊपर कर रहा है ना, ऊपर जा रहा है, बोलिए सर। Thank you so much, sir, for visiting us.